हाँ बेटे, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं लिटरेचर ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन का। एक चीज जानी थी बेटा, जो लड़के शॉर्ट आंसर और सेंट्रल आइडिया पाठक स्टाइल में पाना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप पर भेज दें डिमांड, उनको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मांगना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। तब तक आप तैयारी करते रहो तो देखा जाएगा। केवल यहाँ हमारी कोचिंग लड़के ने कोई भी पाठक स्टाइल से अगर पढ़ना चाहता है, 98 नंबर लेना चाहता है, तो वो जो है नोट्स ले ले, ठीक है। व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा डिमांड, तो हम उसको भेज देंगे, ठीक है। तो पढ़ रहे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन। कल जितना पढ़ा था, कल तक जहाँ तक पढ़ा था, एक बार फिर सुनो, ध्यान सुनो। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस has been composed by John Milton, who has enriched English literature by composing the Paradise Lost and the Paradise Regent. This poem is a Miltonic sonnet. The rhyme scheme of the poem is A-B-B-A, A-B-B-A, C-D-E, C-D-E. The opening 8 lines of the poem are called octave, and the rest 6 lines are called sestet. By using the power of his magic pen, the poet John Milton has proved the supremacy of Almighty God. He has proved that God is omniscient, omnipresent, and omnipotent. The poem is that John Milton has become blind at the age of 34 years old. He is sitting alone and thinking on his blindness. So sitting alone and thinking on his blindness at the age of 34 years old, the poet John Milton feels boundless grief in his heart, because nothing is visible in his eyes. The whole wide world is full of darkness in the eyes of the poet John Milton. There is nothing but darkness around him. It means because of his blindness at the age of 34 years old, the poet John Milton is not in position to see the objects of this world. John Milton has a poetic talent given by God. God has given him a poetic talent. If he wants to hide his poetic talent, if he wants to conceal his poetic talent, so it is as painful as death. It means only death can swallow his poetic talent. Only grave can gobble his poetic talent. But the matter of sadness is that the poet John Milton is alive, and his poetic talent is lying with him useless. Because for composing the poem, there is need of imagination, and for imagination, there is need of looking, and for looking, there is need of eyes. Since the poet John Milton has lost his eyesight at the age of 44 years old, he is not in position to use the poetic talent given by God. It means because of his blindness at the age of 44 years old, the poet John Milton is not in position to use the poetic talent given by God. The poet John Milton wants to serve God with his poetic talent. The poet John Milton wants to serve God with his poetic talent. So what is service to God? Worship is service to God. What is worship? Work is worship. What is the work of a poet? To compose the poems is the work of a poet. Since the poet John Milton has lost his eyesight at the age of 44 years old, he is not in position to compose the poems. Now, so, his worship to God is being interrupted. Because of his blindness at the age of 44 years old, the poet John Milton is not in position to serve God. His worship to God is being intermissioned. ईश्वर के प्रति उसकी जो पूजा भक्तियाँ और खंडित हो रही। After composing a number of poems, the poet John Milton wants to present the true accounts of his poetic talent before God, but he is not in position to do so. Because of his blindness at the age of 44 years old, the poet John Milton is not in position to present the true accounts of his poetic talent before God.
So he is afraid of God. After his death, when his soul, Atma, when his soul goes to the kingdom of God, so God will scold his soul, God will chide his soul, God will slap his soul, God will call him a thief. In this way, the poet John Milton is afraid of God. कब जॉन मिल्टन ईश्वर से क्या डरा हुआ? अब आगे देखते हुए, यहां तक हम पढ़ चुके थे, ध्यान सुनो। तो चूंकि कवि ईश्वर से डरा हुआ है, इसलिए वह प्रश्न करता है। तो डथ माने डज, किताब देखो, किताब है ना, डथ माने डज बताया था, पट्टी वर्ड है, ई एस हटा करके टी एस लगा दिया, यस या ई एस हटा करके टी एस लगा दिया था पट्टी में। डथ माने डज, गाड माने ईश्वर, गाड माने ईश्वर, एग्जैक्ट माने एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट माने आशा करना। क्या ईश्वर आशा करता है? एग्जैक्टली राइट कहते हैं ना, पूर्णतया सहित। एग्जैक्ट माने होता है ग्रीक वर्ड में, ग्रीक वर्ड है यहां पर एग्जैक्ट, आशा करना। क्या ईश्वर आशा करता है? डिलीवर, डे माने दिन, लेबर माने परिश्रम। अच्छा बताइए बेटा, दिन किसके लिए होता है? हाँ? अरे उसके लिए होता है जिसके पास आंखें हैं। जिसके पास आंखें नहीं उसके लिए दिन रात क्या है? बराबर है। तो डे का अर्थ भाव यहां पर क्या है, सीधे समझना बेटा। डे का भाव क्या है? आंखें। क्या ईश्वर आंखों वाले लेबर, लेबर माने परिश्रम, क्या ईश्वर आंखों वाले आदमियों के परिश्रम की आशा करता है? उससे ना बेटा। लाइट डिनाइड, लाइट माने ऊपर बता चुके, लाइट माने प्रकाश। यह शरीर है, इसमें प्रकाश नाम की चीज क्या है? आंखें। और डिनाई माने नकार जाना, यहां लाइट माने भी क्या हुआ? आंखें। जिसकी आंखें डिनाई कर गई हैं, डिनाई माने नकार जाना। क्या ईश्वर आंखों वाले आदमियों के परिश्रम की आशा करता है? उससे जिसकी आंखें, लाइट माने आंखें, डिनाइड माने नकार गई। समझे? कब पूछ रहा है, आई फाउंडली आस्क, मैंने मूर्खता, फाउंडली माने मूर्खता पूर्वक, फुलिशली, फाउंडली माने फुलिशली, ग्रीक वर्ड है। मैंने मूर्खता पूर्वक पूछा। किससे? बताइए, उसके आसपास कोई है? शुरू में बताया था अकेले बैठा है, तो किससे पूछेगा? अपने आप से। कवि जॉन मिल्टन अपने आप से मूर्खता पूर्वक प्रश्न करता है कि क्या ईश्वर मुझ अंधे से, मेरी आंखें चली गई हैं, क्या ईश्वर मुझ अंधे से उसी प्रकार के परिश्रम की आशा करता है जैसा कि वह उनसे करता है जिनके पास आंखें हैं? क्या ईश्वर आंखों वाले आदमियों के परिश्रम की आशा मुझसे करता है जिसकी आंखें चली गई हैं? सुनो, इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण प्रश्न किया किसने? जॉन मिल्टन ने। किससे? अपने आप से। आई फाउंड लिया नोट, बट, लेकिन, पैशियंस, अब शुरू हो गया बेटा, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट पैशियंस टू प्रिवेंट, यहां पैशियंस शब्द को मानवीकरण किया गया, पर्सनिफाइड किया गया। लेकिन कवि का धैर्य, पैशियंस माने धैर्य। कभी कभी आप पिक्चरों में देखते होंगे, अमिताभ बच्चन से बात करते हैं, डबल रोल में नहीं। शाहरुख खान से बात करते हैं, डबल रोल में नहीं, आत्मा से बात करते हैं। यानी कि कवि का धैर्य, इस प्रश्न को सुनकर कवि का धैर्य कूद कर बाहर आ गया। तो कई जॉन मिल्टन हो गए, दो, एक तो ओरिजिनल वाले, दूसरा उनका क्लोन, उनका डुप्लीकेट, यानी आत्मा निकल करके बाहर आ गई, धैर्य निकल करके बाहर आ गया। तो धैर्य को पर्सनिफाइड किया गया। नोट, इस मूर्खतापूर्ण प्रश्न को सुनकर कवि का धैर्य, बट लगाना बट, कूद करके बाहर आ गया। कई जॉन मिल्टन हो गए, दो, एक तो ओरिजिनल वाले और दूसरा उनका धैर्य, यानी 2 अमिताभ बच्चन हो गए।
किस लिए बाहर निकल के आ गया? टू प्रिवेंट। किस लिए बाहर निकल के आ गया? टू प्रिवेंट। प्रिवेंट माने रोकना, रोकने के लिए बाहर आ गया। किसको? जॉन मिल्टन। कवि का धैर्य, इस मूर्खतापूर्ण प्रश्न को सुनकर कवि का धैर्य कूद कर बाहर आ गया और रोका। किसको? कि जॉन मिल्टन, तुम लंठई न करो, तुम्हें इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं करना चाहिए। रोकने के लिए बाहर आ गया कि लंठई न करो, इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण प्रश्न तुम्हें नहीं करना चाहिए। दैट मर्मर सुन रिप्लाइज, जो तुरंत भनभनाता है और उत्तर देता है, कवि के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देता है। सून रिप्लाइज, सून माने जल्दी ही उत्तर देता है। तो अपने उत्तर में कवि का धैर्य कहता है, यानी कि पूरा स्टैंजा कौन बोलेगा? कवि का धैर्य। कवि का धैर्य जॉन मिल्टन को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? कैसे बता? गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती है आइदर मैन्स वर्क, या तो आदमी के कार्य की, आर हिज ओन गिफ्ट, देखो हिज बड़े से लिखा है, अथवा अपना खुद का जो उपहार उसने दिया उसके बदले में कुछ चाहता नहीं। हे जॉन मिल्टन, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर संप्रभु है, ईश्वर सावरेन है। ईश्वर इस संसार रूपी फैक्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर है। बहुत बड़ी हस्ती है यार। कौन? ईश्वर। उसके साम्राज्य में आदमी के कार्य की कोई अहमियत नहीं। फैक्ट्री को कहा समझो जरा, फैक्ट्री में क्या होता है बेटा? उत्पादन होता है। उसकी देख रेख करने के लिए मालिक होता है ना। तो यह संसार भी एक फैक्ट्री है बेटा, इसमें आए दिन उत्पादन हो रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है, पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, गैया भैंसियां बढ़ रही है। तो यह संसार एक क्या है? फैक्ट्री है। इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गॉड। यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर इस संसार रूपी फैक्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसके साम्राज्य में आदमी के कार्य की कोई भी अहमियत नहीं होती। जिस प्रकार से आपके जीवन में एक कीड़ा क्या कर रहा है इसका कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार से ईश्वर की निगाह में हम लोग कीड़े मकोड़े हैं। क्या कर रहे हैं इसका हिसाब किताब रखने की उसके पास समय नहीं। बहुत बड़ी हस्ती है। कौन? ईश्वर। आर हिज ओन गिफ्ट, अथवा वह अपने द्वारा जो उसने उपहार दिया उसके बदले में वह कोई चीज चाहता नहीं, उसको कोई आवश्यकता नहीं। समझाते हैं? एक फैक्ट्री मालिक, ईश्वर को फैक्ट्री बना दिया, ईश्वर को मालिक बना दिया गया और फैक्ट्री संसार बना दिया गया। एक फैक्ट्री मालिक सुबह के समय 4 बजे अपनी फैक्ट्री में विजिट मारा, देखने के लिए गया। तो दरबान ने अंदर से झांका तो देखा कि साहब की गाड़ी आ गई 4 बजे सुबह। झट से उसने दरवाजा खोला, गाड़ी अंदर हुई, साहब गाड़ी से उतरे तो देखा कि जितने भी फैक्ट्री के कर्मचारी थे सब सो रहे थे। अरे 4 बजे नींद आती है, चौकस आराम कर रहे थे। एक स्वीपर फटही गंजी पहने बाथरूम में झाड़ू लगा रहा था। थोड़ा जाड़ा का महीना था, कांप भी रहा था। मालिक ने उस स्वीपर को बुलाया। मालिक कौन? ईश्वर। स्वीपर कौन? जॉन मिल्टन। बुलाया, बेटा इधर आओ। आया। मालिक ने जेब से 10 का नोट दिया और कहा बेटा जाओ, बहुत ठंडी है, जाओ पहले चौराहे चाय पियो। अब वह 10 रुपया लेकर के चौराहे पे गया। तो चाहे तो वह चाय पिए, चाहे तो वह समोसा खाए, चाहे तो लॉटरी खेल जाए, चाहे उस पैसे को कूड़ेदान में फेंक दे। उसको देखने के लिए मालिक पीछे पीछे जाएगा।
तो जान नहीं समझ जाएगा क्या? अच्छा, चाय तो केवल 5 रुपए की मिलेगी चौराहे पर, लौट के आया तो 5 रुपया बचा, तो वह 5 रुपया मालिक को देगा क्या? अगर देता है, मालिक उसे स्वीकार करता है, तो मालिक को ही मार हमें पीस। यानी कि चाय तो 5 रुपए की मिलेगी, लेकिन 5 रुपया बचा ना, वापस लेगा क्या वो? मालिक वापस लेगा? नहीं लेगा ना। तो हे जॉन मिल्टन, ईश्वर ने तुमको 10 का नोट दिया था, मतलब तुमको टैलेंट दिया था, उसका तुम सदुपयोग करते हो कि दुरुपयोग करते हो, इसका हिसाब किताब रखने के लिए उसके पास समय नहीं है। बहुत बड़ी हस्ती है, उसने आपको कविता बनाने की टैलेंट दी, उससे तुम कविता की रचना करते हो या उसे कूड़ेदान फेंक देते हो, इसका हिसाब किताब रखने के उसके पास समय नहीं। बहुत बड़ी हस्ती है जॉन मिल्टन। नोट, यानी कि ईश्वर के साम्राज्य में आदमी के कार्य की कोई अहमियत नहीं। वह अपने द्वारा दिए गए उपहार के बदले में भी आपसे कोई चीज चाहता नहीं। उसने आपको उपहार दिया, कविता बनाने की रचना, कविता बनाने की टैलेंट दिया, उसका आप सदुपयोग करते हो कि दुरुपयोग करते हो, इसका हिसाब किताब रखने के लिए उसके पास समय नहीं। तो कहता हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड जॉब। हु माने जो, बेस्ट माने अच्छे ढंग से, बियर माने सहन कर ले जाते हैं, बियर माने सहन कर ले जाते हैं, हिज माने उसके माने ईश्वर के, अरे बड़े से लिखा ना, माइल्ड माने थोड़ा अथवा ज्यादा, माइल्ड माने थोड़ा अथवा ज्यादा, यॉक माने जुआ। कहीं कहीं पर स्पेलिंग YOUK लिखा होगा, कहीं कहीं पर स्पेलिंग YOKE लिखा होगा, तो Y दोनों सही है। YOKE अंग्रेजी है और YOUK जो लिखा है वह ग्रीक वर्ड है, दोनों का अर्थ है जुआ। यॉक माने जुआ। अरे ताश के पत्ते वाला जुआ नहीं यार, बैल के कंधे पर जो जुआ रखा जाता है दैट इज कॉल्ड यॉक। तो बैल के, अच्छा बताओ बेटा, बैल के कंधे पर जब जुआ रखा जाता है तो वह बैल खुशी होता है कि दुखी होता है? बोलो, दुखी होता है ना। यानी कि योग का अर्थ जो यहां पर आया है, योग जो इस्तेमाल हुआ वह दुख के। तो क्या लिखा बेटा, हु बेस्ट वियर हिज माइल्ड जॉब, जो ईश्वर के द्वारा दिए गए थोड़े अथवा ज्यादा योग को, योग माने दुख को, बेस्ट बियर माने अच्छे ढंग से बर्दाश्त कर ले जाते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वह ही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। तो जॉन मिल्टन ईश्वर की सेवा करना चाहते हो ना, तो ईश्वर के द्वारा ये जो तुम्हारे अंधेपन की परेशानी है, इसको पाठक ने दिया, किसने दिया? ईश्वर ने दिया। अगर तुम ईश्वर के द्वारा दी गई इस अंधेपन की परेशानी को बिना किसी शिकायत के बर्दाश्त कर ले जाते हो, तो तुम्हें ईश्वर के सबसे बड़े भक्त हो, तुम्हें ईश्वर के सबसे बड़े पुजारी हो, तुम्हें ईश्वर के सबसे बड़े सेवक हो। ऊपर सेवा करना चाहता है ना, तो सेवक बनना चाहते हो तो जो परेशानी उसने दी है, चों चों ज्यादा न करो, शांति पूर्वक बैठो और उसे बर्दाश्त करो। हिंदी आ गई। अब पाठक जो अंग्रेजी बोलेंगे उसकी हिंदी एक बार फिर समझो, सुनो करें, ध्यान सुनो बेटा। कवि जॉन मिल्टन ईश्वर से डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर के द्वारा दी गई प्रतिभा का सच्चा लेखा जोखा अपने मालिक के सामने प्रस्तुत करने में क्या है? असमर्थ। इसलिए कवि मूर्खता पूर्वक अपने आप से प्रश्न करता है कि क्या ईश्वर मुझ अंधे से उसी प्रकार के परिश्रम की आशा करता है जैसा कि वह उनसे करता है जिनके पास आंखें हैं? इस मूर्खतापूर्ण प्रश्न को सुनकर कवि का धैर्य कूद करके बाहर आ गया। जॉन मिल्टन को रोकता है, जॉन मिल्टन को सलाह देता है कि तुम्हें इस प्रकार की लंठई नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं करना चाहिए। बिना देर किए हुए कवि का धैर्य
कवि के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देता है। अपने उत्तर में कवि का धैर्य कहता है कि हे जॉन मिल्टन, ईश्वर सर्वशक्तिमान, ईश्वर सुप्रीमो, मायावती बीएसपी सुप्रीमो है, तो ईश्वर जो है पूरे ब्रह्मांड का क्या है, सुप्रीमो है। सर्वशक्तिमान ईश्वर इस संसार रूपी फैक्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर है। बहुत बड़ी हस्ती है जॉन मिल्टन, उसके साम्राज्य में आदमी के कार्य की कोई आवश्यकता नहीं, उसके साम्राज्य में आदमी के कार्य का कोई भी महत्व नहीं। हे जॉन मिल्टन, वह अपने द्वारा दिए गए उपहार के बदले में भी आपसे कोई चीज चाहता नहीं है। उसने आपको उपहार दिया पोएटिक टैलेंट, उसका तुम सदुपयोग करते हो कि दुरुपयोग करते हो, इसका हिसाब किताब रखने के लिए उसके पास समय नहीं। हे जॉन मिल्टन, जो लोग ईश्वर के द्वारा दी गई परेशानी को बिना किसी शिकायत के बर्दाश्त कर ले जाते हैं, वही ईश्वर के सबसे बड़े भक्त हैं, वही सबसे बड़े पुजारी हैं, वही सबसे बड़े सेवक हैं। तो ज्यादा चोचो न करो। यह तुम्हारे अंधेपन की परेशानी पाठक ने तुमको नहीं दिया। किसने दिया? ईश्वर ने दिया। अगर इस ईश्वर के द्वारा दी गई अंधेपन की परेशानी को तुम बिना किसी शिकायत के बर्दाश्त कर ले जाते हो, तो तुम्हें ईश्वर के सबसे बड़े भक्त हो, तुम्हें ईश्वर के सबसे बड़े पुजारी हो, तुम्हें ईश्वर के सबसे बड़े सेवक। उस समय पक्का शुरू करें तो लाइन में देखो, शुरू करें। द पोएट जॉन मिल्टन इज afraid of God because he is not in position to present the true accounts of his poetic talent before God. So the poet John Milton throws an arrow of question and asks himself foolishly whether God hopes such a hard working from him as he hopes from those people who have eyesight. On hearing this foolish question from the tongue of the poet John Milton, his patience comes out, and advises John Milton not to ask such a silly question, such a foolish question. Without delay, the patience of the poet gives the reply of the question asked by John Milton. In his reply, the patience of the poet says that God is supreme. God is the Almighty. Almighty God is the managing director of this world-like factory. In his kingdom, there is no importance of man's work. There is no need of man's work in the kingdom of God. God does not want to get anything. God does not want to get anything for the gift given by him. In his reply, the patience of the poet says that God is supreme. God is the Almighty. Almighty God is the managing director of this world-like factory. In his kingdom, there is no importance of man's work. There is no need of man's work in the kingdom of God. And God does not want to get anything for the gift given by him. In his reply, the patience of the poet says that those people who face the difficulties given by God without any complaint, those people who tolerate the difficulties given by God without any complaint, those people who bear the difficulties given by God without any complaint are his best servicemen, best devotees and best worshippers. If he wants to be the best serviceman of God, if he wants to be the best devotee of God, if he wants to be the best worshipper of God, then he should also tolerate the difficulties of his blindness given by God. If he does so, then he is the best serviceman of God, he is the best devotee of God, he is the best worshipper of God. क्वेश्चन मैडम पक्का? एक बार तो सुनो। कवि जॉन मिल्टन ईश्वर से डरा, क्योंकि वह ईश्वर के द्वारा दी गई प्रतिभा का सच्चा लेखा जोखा ईश्वर के सामने प्रस्तुत करने में असमर्थ।
इसलिए वह अपने आप से एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न करता है कि क्या ईश्वर मुझ अंधे से उसी प्रकार के परिश्रम की आशा करता है जैसा कि वह उनसे करता है जिनके पास आंखें हैं। इस मूर्खतापूर्ण प्रश्न को सुनकर कवि का धैर्य कूद करके बाहर आ जाता है और जॉन मिल्टन को सलाह देता है, जॉन मिल्टन को रोकता है कि हे जॉन मिल्टन, तुम्हें इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं करना चाहिए। बिना देर किए हुए कवि का धैर्य कवि के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देता है। अपने उत्तर में कवि का धैर्य कहता है कि हे जॉन मिल्टन, ईश्वर सर्वशक्तिमान, ईश्वर सुप्रीमो, सर्वशक्तिमान ईश्वर इस संसार रूपी फैक्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर है। यार बहुत बड़ी हस्ती है जॉन मिल्टन। उसके साम्राज्य में आदमी के कार्य की कोई अहमियत नहीं, उसके साम्राज्य में आदमी के कार्य की कोई आवश्यकता नहीं। और ईश्वर अपने द्वारा दिए गए गिफ्ट के बदले में, अपने द्वारा दिए गए उपहार के बदले में भी आपसे कोई चीज चाहता नहीं। हे जॉन मिल्टन, जो लोग ईश्वर के द्वारा दी गई परेशानी को बिना किसी शिकायत के बर्दाश्त कर ले जाते हैं, वही ईश्वर के सबसे बड़े भक्त हैं, वही ईश्वर के सबसे बड़े पुजारी हैं, वही ईश्वर के सबसे बड़े सेवक। तो जॉन मिल्टन, तुम्हारी यह अंधेपन की परेशानी पाठक ने तुमको नहीं दिया, किसने दिया? ईश्वर ने दिया। यदि ईश्वर के द्वारा दी गई इस अंधेपन की परेशानी को तुम बिना किसी शिकायत के बर्दाश्त कर ले जाते हो, तो तुम्हें ईश्वर के सबसे बड़े भक्त हो, उसके सबसे बड़े पुजारी हो, उसके सबसे बड़े सेवक। ये लिखा, चले ध्यान सुनो बेटा। The poet John Milton is afraid of God because he is not in position to present the true accounts of his particular talent before God. So he throws an arrow of question and asks himself foolishly whether God hopes such a hard working from him as he hopes from those people who have eyesight. On hearing this foolish question from the tongue of John Milton, his patience comes out and advises John Milton not to ask such a silly question. Without delay, the patience of the poet gives the reply of the question asked by John Milton. In his reply, the patience of the poet says that God is supreme. God is the Almighty. Almighty God is the managing director of this world-like factory. In his kingdom, there is no importance of man's work. There is no need of man's work in the kingdom of God. God does not want to get anything for the gift given by him. In his reply, the patience of the poet says that those people who face the difficulties, those people who tolerate the difficulties, those people who bear the difficulties without any complaint, those people who face the difficulties given by God without any complaint are his best servicemen, best duties and best worshippers. If he wants to be the best serviceman of God, if he wants to be the best duty of God, if he wants to be the best worshipper of God, then he should also tolerate the difficulties of his blindness given by God. If he does so, so he is the best serviceman of God, he is the best duty of God, he is the best worshipper of God. कुछ समझ आया? एक बार फिर सुनो, पहले पढ़ गया होगा, लेकिन अब रवा कर लो, शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा। The poet John Milton is afraid of God because he is not in position to present the true accounts of his particular talent before God. So he is afraid of God. After his death, when his soul goes to the kingdom of God, so God will chide his soul, God will scold his soul, God will slap his soul, God will call him a thief. In this way, the poet John Milton is afraid of God. So he throws an arrow of question and asks himself foolishly whether God hopes such a hard working from him as he hopes from those people who have eyesight. On hearing this foolish question from the tongue of John Milton, his patience comes out and advises John Milton not to ask such a silly question, not to ask such a foolish question. Without delay, the patience of the poet gives the reply of the question asked by John Milton. In his reply, the patience of the poet says that God is supreme, God is the Almighty,
Almighty God is the managing director of this world life factory. He is the supreme power. In His kingdom, there is no importance of man's work. There is no need of man's work in the kingdom of God. God does not want to get anything for the gift given by Him. In his reply, the patience of the poet says that those people who face the difficulties, those people who tolerate the difficulties, those people who bear the difficulties given by God without any complaint are His best servicemen, best duties and best worshippers. If he wants to be the best serviceman of God, if he wants to be the best duty of God, if he wants to be the best worshipper of God, then he should also tolerate the difficulties of his badness. If he does so, then he is the best serviceman of God, he is the best duty of God, he is the best worshipper of God. In this way, the patience of the poet tries his best to convince John Milton not to ask such a silly question. क्वेश्चन ऑर्डर। तो हम आपको सलाह देते हैं कि रोज शाम 5 बजे यह जो हम बोल रहे हैं, आप किताब लेकर के, कलम लेकर के मोबाइल खोल लिया करो ना बेटा, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। कुछ एपिसोड पीछे के बंद हो रहे हैं, यानी इसलिए बंद हो रहे हैं बेटा, अब उसको हम बाद में बताएंगे। लेकिन आप समझो हमारी बात, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पंक्चुअल हों और रेगुलर। पक्का? थैंक यू।